A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know that from the previous classes we are going through the different studied the different questions related to the different chapters. Okay, so basically it deals with the different chapters or the different topic of the different chapter. So let us do some numerical questions or the practical question, basically the chapter government budget, right? So let's start with the one question. So question is, when government through its budgetary policy, when government through its budgetary policy makes alteration in saving and rate of investment in the economy. Objective is to achieve economic stability, option B economic growth, option C balanced regional development, option D reducing inequalities of income and wealth. Okay, so the question is, related to that is when government through its budgetary policy. Okay, when government क्या करती है, बहुत सारी changes और going through to preparing the government policies, budgetary policy, their expenses or the revenue of the government. So it makes the alteration in the saving and the rate of investment. वो alteration, वो changes किस में लाती है? जो भी savings का rate है, जो भी investment का rate है, उनमें क्या करती है? वो alteration बहुत सारे changes करती है, right? So objective is to achieve. वो उसका ये करने के पीछे what is the reason, what is the objective behind all these changes, all the alteration in the saving and the investment. So first क्या है? Economic stability से related objective है. Second is saying that the economic growth होगा, balanced regional development है, और the reducing inequalities of the income and wealth. जो भी inequalities है income और wealth की, उससे related है. ठीक है? सो ये कंसेप्ट किससे रिलेटेड है, यही इसमें डिस्कस कर रहा है. तो इसमें देखो, इसमें ये कह रहा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू दी चेंजेस अकर इन दी प्राइसेस, दैट इज इन्फ्लेशन और द डिफ्लेशन. इससे रिलेटेड होगा. या कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना कंट्री में हो रही. इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स कि
प्रोडक्शन में कितना, इनकम में चेंजेस कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंजेस हो रहा है, उससे होगा। या बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होगा, जो भी डिफरेंट रीजन है उनमें बैलेंस्ड डेवलपमेंट होगा, चाहे कंट्री के कोई भी स्टेट्स को ले लें उनमें प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। और दी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ ऑफ द इनकम एंड वेल्थ, जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं किसमें, इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटीज़ है उसको क्या करने, उनको इक्वल करने से ये रिलेटेड है। तो आपको बता दें ये जो है कंसेप्ट विच इज़ डील विद दी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्राइस में चेंजेस की बात नहीं कर रहा है कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है कंट्री में, ये होगा नहीं। फिर आपका बात आता है रीजनल डेवलपमेंट, ये भी नहीं कह रहा है कि किसी एक रीजन डिफरेंट एरिया के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा। और यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ इनकम और वेल्थ की भी नहीं है कि रिच पीपल की इनकम की बात हो रही है या पुअर पीपल को कम इनकम मिल रही है, उससे रिलेटेड है। सो इट इज़ दी बेसिकली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, जब मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट विल बी जनरेटेड, प्रोडक्शन सेक्टर क्या होगा, प्रोड्यूसर क्या होंगे, मोर कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीज होगी, आपका इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, डिमांड एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन दी अकर इन दी इन्वेस्टमेंट रेट। सो द रीजन और द ऑप्शन or the objective is to achieve is the option B, that is economic growth. Economic growth के लिए क्या होगा, alteration होगा saving and the rate of the investment में। Moving to the next question. Okay, so the question is, due to pandemic of COVID-19, Government of India has set aside a sum of rupees 500 crores for the construction of health infrastructure in the state of Odisha and the Jharkhand. In the states of Odisha and Jharkhand. Which objective of government budget of the government budget is highlighted in the case above, is highlighted in the case above. Okay, so let us see the example. Option, first one is
reallocation of resources, option B, balanced regional development, option C, management of public enterprises, option D, economic stability. Okay, so let us see the question. क्वेश्चन किस बारे में पूछ रहा है? So question is asking about कि due to pandemic of COVID-19, कि COVID-19 जो पेंडेमिक है उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ने क्या किया है, हैज सेट असाइड, उसने एक सम ऑफ 500 करोड़ रुपीज़ का फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली कहाँ पे, उड़ीसा और झारखंड के लिए उतना अमाउंट फिक्स करके रख दिया. एक साइड उन्होंने 500 करोड़ रुपीज़ को रख दिया. ठीक है, फिर कह रहा है विच ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज हाईलाइटेड इन द केस अबव. ये जो काम गवर्नमेंट ने किया, पैसे को अलग करके रख दिया, ये इसमें गवर्नमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे गवर्नमेंट के, रीअलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, reducing the inequalities in the income and the wealth, management of the public enterprises, economic stability, economic growth, ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया है. ठीक है, तो यहाँ पे एक सिचुएशन, एक कंडीशन ये दे दिया है कि पेंडेमिक 2019 जो आया उसमें देखा गया कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब उड़ीसा और झारखंड के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें प्रॉपर अच्छे से मिले, उसके लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपीज़ को रख दिया है. अब ये गवर्नमेंट की किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है? सबसे पहला है रीअलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज. व्हेन वी टॉक अबाउट द रीअलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, सो इट मीन्स दैट कि अगर रीअलोकेशन की रिसोर्सेज की बात हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है, दैट मीन्स कि रिसोर्सेज को अलोकेट किया जा रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है, हर एक सेक्टर, हर एक एरिया क्या हो, उनका बैलेंस्ड ग्रोथ हो. और मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस, जो भी पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं उनका जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, वो उसको प्रॉपर से मैनेज करो. नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज डील विद द प्राइसेस, दैट मीन्स जनरल level of prices increasing or the decreasing, so basically deal with the inflation or the deflation situation. ठीक है, सो यहाँ पे आपको पता है कि उड़ीसा और झारखंड के लिए स्पेसिफाइड है कि यहाँ के लिए ही कर रहा है. सो दैट मीन्स इट इज़ द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बैलेंस्ड रीजनल, जो भी डिफरेंट रीजन है उनका बैलेंस्ड डेवलपमेंट होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, fill in the blanks is given. Is a is a compulsory payment made by general public to the government, to the government. Okay, so
Option is estate. Option B is tax. Option C is special assessment. Option D is fines and challans. Okay, so this is the question is given here. क्वेश्चन कह रहा है कि fill in the blank is a compulsory payment. क्या ऐसा compulsory payment है which is made by the general public, जो जनरल पब्लिक करती है to the गवर्नमेंट को देने के लिए. ठीक है, सो आपको पता है कि जो भी बजट रिसिट होते हैं इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, है ना, रेवेन्यू रिसिट एंड द कैपिटल रिसिट. सो रेवेन्यू रिसिट्स आर दोज रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच डजेंट अफेक्ट द असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट की असेट और लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करता है. सो इट इज़ ऑफ द 2 टाइप्स, टैक्स रिसिट एंड द नॉन टैक्स रिसिट. सो टैक्स रिसिट्स आर द दोज रिसिट्स which is made to the government, which is a compulsory payment done by the general public to the government. Okay, so it is of 2 types, direct tax and the indirect tax. So in the direct tax, all the pressures is on the individual and the firm. We can't shift our pressure to the another one, but in the case of indirect tax we can shift our imposition or the pressure to the another one. So from that we know that tax, option B, tax is a compulsory payment which is made by the general public to the government. So यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, tax. Option B is the right answer. Okay, now moving to the another question. Question is, reallocation of resources involves reallocation of resources involves, first is imposition of taxes and offering subsidies. Imposition of taxes and offering subsidies to change the production level of, to change the production level of certain industries. Option B, imposition of taxes and offering subsidies to set up industries, in the backward, in the backward region
in the backward region of the country. Option C. Imposition of taxes and offering subsidies to change the income level of certain section of the society. Certain section of the society. Option D. Changing the rate of saving and investment in the economy. Changing the rate of savings and investment in the economy, right? Okay. So the question is asking here reallocation of the resources. So firstly we will discuss about the reallocation of the resources, the topic from which chapter it belongs. ठीक है, किस chapter से ये belong करता है. तो आपको याद होगा कि हम लोग ने क्या देखा था. The topic reallocation of resources is one of the objective of the preparing of the government budget. Okay, so when the government prepares the union budget at the central level, तो क्या होता है, बजट क्या होता है, एक एस्टिमेटेड इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. ये क्या होता है, एस्टिमेटेड. इट्स नॉट एक्चुअल ये नहीं होता, ये एस्टिमेटेड होता है कि कितना ज़्यादा कंट्री का एक्सपेंडिचर होगा और कितनी ज़्यादा कहाँ से इसको सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यूज आर देयर, कहाँ से उसको इनकम मिलेगी और कहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर होगा. तो आपको पता है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू के क्या क्या हो जाते हैं. गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिट्स और भी अभी जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, रेवेन्यू रिसिट्स और भी कैपिटल रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और द कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पे क्या है, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ दी one of the topic of the objectives of the budget. Why the union budget is prepared by the government. Government prepare क्यों करता है, because of the government ये देखता है कि किस सोर्स से उसको रेवेन्यू मिलेगा और किस सेक्टर में उसको एक्सपेंडिचर करना है. ठीक है, तो उसमें क्या क्या था. सबसे पहला था रीअलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, reducing the inequalities between the income and the wealth, as well as in the regional inequalities. Third one is management of the public sector units or the undertakings. Fourth one is, we can say that it will be the topic that is the economic growth, and the next one or the last one is economic stability, right? So here is the reallocation of the resources. रीअलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था
कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उनको रीअलोकेट करती है। क्यों? कि कहाँ पे वो ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेगी, किस सेक्टर, किस एरिया में, जिससे वहाँ से प्रोडक्शन कम हो जाए, और कहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देगी जो वो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या हो, एनकरेज हो टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। अभी पहला देखो क्या है, पहले इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड ऑफरिंग सब्सिडीज टू चेंज द प्रोडक्शन लेवल ऑफ द सर्टेन इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑप्शन से हमें समझ में आ रहा है यही होगा कि जो भी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हैं वो अपना प्रोडक्शन में चेंज करते हैं। सो फ्रॉम दिस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।